Hello students, my name is Pavneet and welcome to my channel IELTS with Pavneet. Today we are going to discuss a cue card and that is describe a daily routine that you enjoy. Let's read the cue points as well. What it is, where and when you do it, who do you do it with, and explain why you enjoy it. So here you need to talk about any activity that you do regularly, and it can be any particular activity. It can be walking, it can be yoga, meditation, studies, or any particular thing. Now let's read the cue card. Being an early riser, my morning routine tends to start at 6 a.m. Despite getting out of the right or wrong side of bed, I still go for strolling with my dog Charlie. As I'm accustomed to this habit, and fortunately, my dog Charlie is also obsessed with going on a run at the crack of dawn. So here I have started my sample answer by saying being an early riser. Early riser basically means when you want to say that a person who loves to get up early in the morning, and that person is called early riser. अभी हिंदी में देख लेते हैं. अर्ली राइजर का मीनिंग होता है कोई ऐसा पर्सन जिसको सुबह जल्दी उठना पसंद होता है और जो सुबह जल्दी उठता है उसको अपने क्या कहते हैं, अर्ली राइजर कहते हैं. देन आई सेड माई मॉर्निंग रूटीन टेंट्स अपने यूज़ करते हैं या फिर टेंट टू अपने यूज़ करते हैं व्हेन यू वांट टू से यूजुअली. Then I said despite getting out of the right or wrong side of bed. अभी ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है and try to use idiomatic expression, collocation, phrasal verb, topic related vocabulary. Try to use these kind of things if you really want to impress your examiner. So here I have done the same. I have used a phrasal verb and that is get out of the right or wrong side of bed. ये अपने कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब अपनों ने गुड और बैड मूड बताना होता है. ठीक है, जब अपने राइट साइड उठते हैं तो अपना गुड मूड होता है, जब अपने रॉन्ग साइड उठते हैं तो अपना बैड मूड होता है. सो मैंने कहा चाहे मेरा मूड अच्छा हो चाहे मेरा मूड बैड हो, आई स्टिल गो फॉर स्ट्रॉलिंग. अभी नॉर्मली अगर आप वॉकिंग चूज़ कर रहे हो इस पर बोलना, सो वॉकिंग बहुत बार रिपीट होगा. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग वॉकिंग आप क्या कह सकते हो, स्ट्रॉलिंग कह सकते हो. सो मैंने कहा आई स्टिल गो फॉर स्ट्रॉलिंग विद माई डॉग चार्ली एज आई एम अकस्टम्ड टू दिस रूटीन. सो अभी यहाँ पे मैंने यूज़ किया, मैंने कहा आई एम अकस्टम्ड टू दिस रूटीन. अकस्टम्ड अपने वहाँ पर यूज़ करते हैं जब आप कहना चाहते हो आप किसी चीज़ के हैबिचुअल हो गए हो. जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, आप कह रहे हो आई एम हैबिचुअल ऑफ ईटिंग फास्ट फूड. ये कहने की बजाय आप क्या कह सकते हो, आई एम अकस्टम्ड टू ईटिंग फास्ट फूड, इस तरीके से. Then I said at the crack of dawn. So this is an idiomatic expression and ये अपने कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब आपने early morning कहना होता है वहाँ पर अपने इसको यूज़ कर सकते हैं. If I'm not mistaken, when I was growing up on that time, I used to see my father and his dog go for strolling every day. And he introduced me the significance of walking, that by doing this exercise, we can not only stay away from cardiovascular disease, but also become as fit as a fiddle. That's why I have been following the same daily routine like my father. So now I have used a natural expression and that is if I'm not mistaken. Students try to use that. To be honestly, majority of students what I have seen, they just repeat I vividly remember. अगर आप अपने फ्रेंड्स का देखो, अपना देखो, आप भी मे भी यही यूज़ करते आ रहे होगे, आई विविडली रिमेंबर. सो ये मत यूज़ करो, इसकी जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. देन मैंने कहा व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप. सो ग्रोइंग अप अपने कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब आपने बताना होता है व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप. देन मैंने अगेन स्ट्रॉलिंग यूज़ कर दिया, देयर यू कैन ऑल्सो यूज़ वॉकिंग एज वेल. देन मैंने कहा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़. मे बी सम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता हो क्योंकि अपनी राइटिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं. कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का मीनिंग होता है जब अपने हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ की बात करनी होती है. सो वहाँ पर अपने क्या यूज़ करेंगे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़. देन मैंने एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज़ कर दिया एंड दैट इज़ फिट एज अ फिडल. इसका मीनिंग होता है जब आपने हेल्थी कहना होता है. Now I go fairly regularly to a park which is located stone's throw away from my house. There I do heaps of activities like jumping, skipping and such like. The cherry on the cake is that the view that park provides is breathtaking. So after going there, I can easily recharge my batteries. So now I said that fairly regularly मतलब आप regularly जाते हो. Then मैंने यूज़ किया stones throw away, इसका मीनिंग होता है nearby. Then मैंने कहा the cherry on the cake. We use that particular idiomatic expression when you want to present the additional benefit. जब आप additional benefit को present करना चाहते हो आप वहाँ पर क्या बोल सकते हो, the cherry on the cake.
फिर मैंने यूज़ किया ब्रेथ टेकिंग, जब आप ब्यूटीफुल कहना चाहते हो तब आप यूज़ कर सकते हो इसको। रिचार्ज माई बैटरीज, सो ये अगेन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, ये आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जब आप री एनर्जाइज्ड की बात करते हो वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। Even I remember when I was a child, on that time I was a couch potato, and because of that I was always rebuked by my parents. Mind you, nowadays I am hale and hearty, and because of my daily routine. So this is the thing that I do day in and day out, and I cherish it a lot. सो अभी मैंने यहाँ पर यूज़ किया काउच पटैटो। इसका मीनिंग होता है जब कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होता है, सारा दिन बैठा ही रहता है टीवी के सामने, उसको अपने कहते हैं काउच पटैटो। रिबुक्ड का मीनिंग होता है जब आपको डांटा जाता है, आपके पेरेंट्स अगर आपको डांट रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हो, रिबुक। देन मैंने यूज़ किया माइंड यू, स्टूडेंट्स ट्राई टू यूज़ दैट वन। इफ़ यू हैव वॉच्ड माई लास्ट वीडियोज़ दैन यू विल नो दैट मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी ये कई बार यूज़ किया है। सो ट्राई टू यूज़ दैट वन जब आप कहना चाहते हो बट। देन मैंने यूज़ किया हेल एंड हर्टी, इसका मीनिंग होता है हेल्थी। एंड लास्ट आई हैव यूज डे इन एंड डे आउट, दिस इज़ ऑल्सो एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, एंड ये अपने कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जब आप डेली, रेगुलरली या फिर ऑन माई डेली बेसिस कह रहे हो। देन मैंने यूज़ किया चैरिश, चैरिश का मीनिंग होता है एन्जॉय, सो अपने वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर still students, if you haven't understood the sample answer, just let me know in the comment section. Any particular example that you want to have, just let me know in the comment section. I will give my best to provide you the example as soon as I can.